Hey guys, very good evening everyone. Good evening guys. Very good evening. Welcome to this super awesome YouTube channel of India's largest online education platform, Unacademy. And guys, this is Darshan Jain, your educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and a company secretary by profession and an educator by passion and has been teaching the subject of financial accounting for the past 9 years. And guys, today let's complete lecture number 6 of our unit 6 of very important topic, partnership, death of a partner. So guys, finally we are going to complete our partnership series by Thursday. Tomorrow we are not having any lecture. On Wednesday and Thursday we are going to complete this entire topic, and this will end our partnership topic. So friends, see you for the last two lectures of death of a partner on Wednesday and Thursday. दोस्तों वी हैव ऑलरेडी कमेंस्ड अवर आरटीपी एमटीपी बैच फ्रॉम 17th of October और बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है दोस्तों ये बैच. टाइमिंग my schedule in this particular batch is Wednesday and Thursday 3:30 to 5:30. I have also started revision series, midnight revision series from 27th of October. And friends, रात में 10 से 12 चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी आज एनपीओ में खत्म करने वाला हूं. कल एवरेज ड्यू डेट का वन शॉट मैंने ऑलरेडी कर लिया है. सो फ्रेंड्स, क्या क्या है मिडनाइट रिवीजन सीरीज में? द सीरीज हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 27th of October, 30th नवंबर तक चलेगा दोस्तों. 20 सेशंस है इसमें ऑफ 2 hours ईच. 3 वन शॉट मैराथन होंगे. I am covering the questions from study material, PYP, RTP and NTP. Timing is 10 to 12. Notes are very important and you can score 60 plus on the basis of midnight revision series, mini marathons and day before marathon. Friends, आज एनपीओ कंप्लीट कर लूंगा, 10 मार्क हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे. कल ऑलरेडी मैंने एवरेज ड्यू डेट खत्म कर दिया था, वो 5 मार्क हमारे कंट्रोल में आ गए. एंड गाइस, कंसाइनमेंट कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका वेटेज अराउंड 10 मार्क्स का होता है. For attending midnight revision series, for attending RTP MTP batch and for attending 900 MCQs batch of accounts and economics, you need to have a valid subscription. The subscription is available depending upon your suitability from 24 months से लेकर 2 months. अगर आपका अटेम्प्ट दोस्तों भी दिसंबर में, you can go for 2 months subscription which is going to cost you only 8,100 और आप आपका प्रिपरेशन कर सकते हो for December 22 attempt very nicely. You can also go for our iconic subscription जहां आपको मिलेगा पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, वैलिडेटेड टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल. उसके प्राइसेस आपके स्क्रीन पर है. You can also go for a टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट जिसका नाम है CA Foundation Lite, which is a test series product and the most cost effective test series product in India. You can also go for a combo subscription जिसमें फाउंडेशन और इंटर दोस्तों दोनों का सब्सक्रिप्शन for 24 months. You are getting it at 45,000 only. Do not forget to use my code, this DKJ10. This is our super awesome result of June 22. Expecting same नहीं बोलूंगा, expecting much more result from you guys. And these are our stars for June 22 who scored 90 plus marks in accounts. Hoping this number increases in large number and ये सब आपको करके दिखाना है दोस्तों. These are the dedicated channels of Bahubali team for CA Foundation. Do like, share and subscribe them. And friends, this is the Telegram channel. You cannot miss to subscribe. More than 28,000 students have already subscribed and have been receiving link notes and updates from your loving Bahubali team. दोस्तों, do follow me on the Unacademy's learning app. My ID is C_Darshan_Jain. So friends, let's see कितने questions हमारे बाकी है. Question number 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4th हो गया, 5th हो गया, 6th इज डन, 6th भी हो गया, 7th भी हो गया, 8th भी हो गया, 9th भी हो गया, 10th इज बाकी. 10th बाद में करेंगे, आज एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है. 11th हैज बीन डन, 12th हैज बीन डन, 12th मैंने होमवर्क दिया था. यस, लेट मी चेक फर्स्ट. 12th होमवर्क दिया था, किया क्या सभी ने? कितने लोगों ने होमवर्क किया है, जरा बताना प्लीज. Yes, a very good evening to everyone. Khushi, Mayuri, Simranjeet, Neil, Abdul, Yukta, Ashutosh, Ishit. Very good evening, guys. Nexon. I hope everyone got these and everyone done the homework. Please check. पहला पूछ रहा था वो गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री. ए इज अकाउंट डेबिट, बी इज अकाउंट डेबिट टू सी इज अकाउंट. फिर रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. 150 का प्रॉफिट था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस आएगा 4150 ए का, बी का 4150 एंड अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर 5050.
an entry if RDD is no longer required, RDD to A to B. ठीक है. So guys, 12th is also done, 13th is also done, 14th is also done, 15th बाद में करेंगे, 16th आज कर लेते हैं. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. फिर इसके बाद हमारे 3 क्वेश्चन बचेंगे जो कि हम बचे हुए नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में कर लेंगे दोस्तों. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन. दिया, रिया एंड किया आर पार्टनर्स ऑफ मेसर्स DRK Fabrics, sharing profits and losses in the ratio of 2:1:2. On 31st March 2020, their balance sheet was as under: capital दिया, रिया, किया, जनरल रिजर्व, ट्रेड पेबल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, JLP, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक अकाउंट. किया डाइड ऑन 30th September. बड़ा दुख की बात है. रेस्ट इन पीस किया. द पार्टनरशिप डीड provides as follows: that partners will be allowed interest at the rate of 12% on their capital, but no interest is to be charged on their drawings. Okay. Upon the death of a partner, the goodwill of the firm valued at 1 year's purchase of the average net profit after charging interest on capital for the 4 years to 31st March preceding the death of a partner. The profits of the firm before charging interest on capital were 16, 17, 17, 18, 18, 19 and 19, 20. So guys, very important. तो ये जो प्रॉफिट हमको दिए गए ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन गुडविल के लिए हमें जो प्रॉफिट निकालना है वो निकालना है आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके. द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 years may be assumed as rupees 3 lakhs. Next, profits till the date of death to be ascertained on the basis of average profit of previous 4 years. Okay. Upon the death of a partner, she is to be credited with her share of profits, interest on capitals calculated till the date of death. ठीक है, तो उसको क्या मिलने वाला है? उसका शेयर इन प्रॉफिट और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेट ऑफ डेथ. After the death of Kia, rupees 2 lakh was received from insurance company against JLP. Land and building was appreciated by 20%. Furniture is to be depreciated by 10%. Inventory is to be revalued at 80,000 and bad debts amounts to rupees 1760. Amount payable to Kia was paid in cash. Prepare revaluation account, partners capital account, balance sheet and as on 30th September, assuming other assets and liabilities remaining the same. नॉट ऑल असेट्स. बच्चे अक्सर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर लिखा हुआ है असेट्स एंड लायबिलिटीज रिमेनिंग द सेम. फिर बच्चे दिमाग लगाते हैं, बच्चे कहते हैं सर ये तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वाला है. ना मन्ना ना, अदर जिसकी यहाँ पर बात नहीं हो रही है उसके अलावा जो भी असेट होंगे वो सेम वैल्यू में कैरी होंगे जो बैलेंस शीट में दिया गया है. दिस इज वेरी केयरफुल, ध्यान देना है. ठीक है, मैंने आज फर्स्ट लाइव लेक्चर ज्वाइन किया है सर. स्वागत है बेटा मयूरी आपका. बेटा मयूरी स्वागत है आपका. वेरी गुड क्वेश्चन गाइस. एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन एग्जाम फॉर अराउंड 10 to 15 मार्क्स. बना लेंगे फॉर्मेट. रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिया, रिया एंड किया, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 30th September 2020. फिर वर्किंग नोट में बन जाएगा बैंक अकाउंट. ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा दोस्तों वो भी हमने बनाया है. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट. ठीक है, वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट. फॉर्मेट बना लो, थम्स अप दे दो कि फॉर्मेट रेडी हो गया. और जिसका फॉर्मेट रेडी हो गया एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे प्लीज. रीड द क्वेश्चन अगेन. दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस. Done everyone? महक मित्तल, हाय गाइस. क्या महक सबको हाय बोल रही हो, मुझे नहीं कह रही हो? दिस इज वेरी बैड.
दोस्तों रेडी है क्या सब कुछ? आर यू गाइज रेडी विद द फॉर्मेट? ग्रेट, लेट्स बिगिन. DRIA and Kia are partners of Messrs DRK Fabrics, sharing profits and losses into the ratio of 2:1:2. On 31st March 2020, their balance sheet was as under. Capital DRIA and Kia लिख देंगे दोस्तों. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, 1,80,000 एंड किया का 70,000. नेक्स्ट, जनरल रिजर्व 1,40,000. जनरल रिजर्व क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. किसको? दिया या किया को. किस रेशियो में? 2:1:2. एक का हिस्सा कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2. 56,000, 28,000, 58,000, सॉरी 56,000, 56, 28, 56 लिख देंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व दिया 56,000, रिया 28,000, किया 56,000. दो और वर्किंग नोट बना लो. इसके दो और वर्किंग नोट बना लो. असर्टेनमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फॉर अराउंड 10 लाइन्स. दो वर्किंग नोट पहले बना लो दोस्तों. बैंक अकाउंट आपने बनाया है, उसके नीचे असर्टेनमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. और दोस्तों असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर. दिस इज फॉर 8 लाइन्स. हेलो अंजलि. यस, डन एवरीवन. चलो नेक्स्ट. ट्रेड जनरल रिजर्व हो गया. ट्रेड पेबल 60,000. कोई एडजस्टमेंट है क्या? एनी एडजस्टमेंट ऑन ट्रेड पेबल्स? नो. लिख देंगे वैसे कि वैसे. लिख देंगे वैसे कि वैसे. बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल्स 60,000. बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल्स 60,000. नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग 1,65,000. क्या एडजस्टमेंट है? लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ा देना है. ठीक है, 1,65,000 इंटू 20%, 33,000 रुपीज से बढ़ जाएगा. लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 33,000. सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 1,98,000, 33,000 ऐड कर देंगे. फिर उसके बाद फर्नीचर 75,000. एनी एडजस्टमेंट ऑन फर्नीचर? यस, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. ठीक है, फर्नीचर 10%. कितना है फर्नीचर का वैल्यू? इट इज 75,000. 75,000 माइनस 10%, 67,500. चलो आ जाओ दोस्तों. ओके, टू फर्नीचर 7,500. बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे दोस्तों फर्नीचर 67,500. सर आप रिप्लाई नहीं करते ना, इसलिए आपको हाई नहीं बोला. ओ हो, अब तो कभी रिप्लाई नहीं करूंगा. अब नेक्स्ट, JLP 60,000. एनी एडजस्टमेंट? मेरे को बताना कौन सा मेथड है ये JLP का. JLP का विच मेथड?
JLP का विच मेथड? यस, सेकंड मेथड। करेक्ट गाइस, करेक्ट 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 करेक्ट। क्या एडजस्टमेंट है JLP पे? द JLP पे एडजस्टमेंट इज कि 2 लाख सॉरी 2 लाख रुपया मिला, किया ऊपर गई तो अब ये 2 लाख में से 60,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि 60,000 बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिख रहा है। तो ये 2 लाख रुपए आएंगे। एंट्री क्या होगी? एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में वर्किंग नोट में आपने बैंक अकाउंट बनाया है टू JLP। सेकेंड लाइन लिखना है टू JLP 2 लाख रुपीज। अब दोस्तों JLP में कितना बैलेंस बचा? JLP में कितना बैलेंस बचा? 60,000 डेबिट बैलेंस था, फिर 2 लाख से क्रेडिट हुआ, 1,40,000 क्रेडिट बैलेंस बचा है। डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 56,000, 28,000, 56,000। ठीक है, रोहन भुजबल, गुड मॉर्निंग सर। कौन सी वाली टीका क्या है रे? गुड मॉर्निंग है क्या ये? नेक्स्ट लिख देंगे दोस्तों, बाय JLP 56,000, 28,000, 56,000। आई होप JLP का एडजस्टमेंट आपको समझ में आया सभी को। गुड इवनिंग सर, क्लास थी लेट हो गई। कोई नहीं बेटा। एक महक मित्तल जो सबको विश करती है, मुझे नहीं करती है, और एक है महक मित्तल, महक गुप्ता, सॉरी महक गुप्ता, जो पहले मुझे विश करती है। नाम ही एक, लेकिन देखो दोस्तों कितना फर्क है। क्यों इतना डिफरेंस? नाम एक है तो काम एक क्यों नहीं हो सकता? इन्वेंट्री 88,740, 88,740। क्या करेंगे इन्वेंट्री का? 80,000, यानी कम करना है। कम करना है, कितना कम करना है? 8,740। एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू इन्वेंट्री 8740, एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे इन्वेंट्री 80,000। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल 96,750। क्या है एडजस्टमेंट? बैड डेट्स है 1760, लिख देंगे दोस्तों। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैड डेट्स 1760, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में ट्रेड रिसीवेबल्स लेस कर दो 1760, 96,750 माइनस 1760, 94,990। सरांना माझा नमस्कार, लव फ्रॉम सेलू। नमस्कार भाऊ, काय चाललंय? सर कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर न्यू ऑडी। जमाने हो गए ऑडी लेके, अब भी कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही हो यार अंजलि, दिस इज वेरी बैड। ओके, बैंक बैलेंस 1,14,510। क्या करेंगे दोस्तों? क्या किया जाएगा? बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,14,510, 1,14,510। चलो नेक्स्ट, एंटायर बैलेंस शीट इज डन। किया डाइड ऑन 30 सितंबर, 6 महीने बाद ऊपर चले गई किया। कितने महीने जिए इस साल? इस साल जी
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने, 6 महीने जी। और फिर किया गई। ठीक है, प्रिया ओबराय हेलो। मैं सबको रिप्लाई कर रहा, मैक को नहीं कर रहा, मैक नाराज हो जाएगी। हाय बेटा मैक, गुड इवनिंग बेटा मैक मित्तल। नेक्स्ट, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज फॉलोज। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बी वेरी वेरी केयरफुल, हैव फोकस। नेक्स्ट, that partners be allowed interest at 12% on their capitals but no interest is to be charged on drawings। ठीक है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है। कितना इंटरेस्ट आएगा? 10% मतलब 12% मतलब 1,50,000 इंटू 12%, 18,000 इसका आएगा। ठीक है, 1,80,000 इंटू 12%, 21,600 और 70,000 पे 12%, 8,400। पर एक कॉमन सेंस की बात है, मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाता है? साल खत्म होने के बाद। क्या अभी साल खत्म हुआ है? क्या साल खत्म हुआ है? क्या साल खत्म हुआ है? नहीं, तो वी कैन नॉट गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई दिया और रिया का रहने दो, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग नहीं देंगे, लेकिन किया का दे दो। किया का कितना हो रहा है? 8,400 हो रहा है पूरे 12 महीने का। तो 6 महीने का कितना होगा? 6 महीने का होगा 4,200। दोस्तों एंट्री क्या होंगी? एंट्री होंगी पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कियास कैपिटल अकाउंट, कियास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो दोस्तों ये जाएगा डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उतना पीएल सस्पेंस में बैलेंस आ जाएगा। तो गाइस एंट्री हो जाएगी किया के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,200। इसका सेकंड इफेक्ट आ जाएगा पीएल सस्पेंस अकाउंट। दोस्तों पीएल सस्पेंस में दो चीजें आने वाली है, एक तो उसका शेयर अप टू द डेटा ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साल का गया है वो भी। ठीक है, तो पहले लिख देंगे 4,200, 4,200 नीचे लिखेंगे क्योंकि एक और चीज इसमें ऐड होगी, क्या? उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। दिस इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट, upon the death of a partner, the goodwill of the firm is to be valued at 1 year's purchase of the average net profit after charging interest on capital for the 4 years to 31st preceding the death of a partner। तो दोस्तों एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, उसमें से फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग माइनस कर लेंगे। कितना एवरेज कैपिटल बता रहे हैं वो? 3 लाख का एवरेज कैपिटल है, इंटू 12% कितना हो जाएगा? ये 36,000। तो इनका एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, उसमें से 36,000 माइनस कर देना। 1,62,000 प्लस 1,99,000 प्लस 1,87,000 प्लस 1,96,000 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 36,000। कितना आया दोस्तों? एवरेज प्रॉफिट of last 4 years after interest on capital comes to rupees 1,50,000। और कितने ईयर्स परचेज है? 1 ईयर्स परचेज है, इंटू 1 कर देंगे 1,50,000 आ जाएगा दोस्तों, इंटू 1 कर देंगे 1,50,000 आ जाएगा। नाउ गुडविल में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग क्या है? अगर कुछ नहीं देते हैं तो जो रेशियो उनका एग्जिस्टिंग था वही उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स किया कितना सेक्रीफाइस कर रही है? 2/5। ठीक है, और दिया और रिया किस रेशियो में गेन कर रहे हैं? 2:1। ठीक है, तो दोस्तों आ जाओ वर्किंग नोट ऑफ गुडविल। वर्किंग नोट ऑफ गुडविल, value of goodwill is equal to 1 year's purchase of average profit of last 4 years
कितना आ जाएगा वो? अब वो 36,000 आप पर्टिकुलर ईयर से भी हर साल माइनस कर सकते हो या पहले आप एवरेज निकाल लो और उसके बाद 36,000 माइनस कर दो. इट्स वन एंड द सेम. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. What will be value of goodwill? It's a 1 year's purchase of average profit of last 4 years. So that comes to around 1,50,000. I hope everyone is getting this. चलो नेक्स्ट. सो कितना सेक्रीफाइस कर रही है किया? 2/5. 1,50,000 इंटू 2/5 लिख देंगे. किया अकाउंट के क्रेडिट साइड में 60,000 और ये 60,000 कौन गेन कर रहा है? दिया और रिया कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. तो दोस्तों 60,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2. दिया बियर करेगी 40,000 रुपया, रिया बियर करेगी 20,000 रुपया. ये हो जाएगा गुडविल का ट्रीटमेंट. कर देंगे दोस्तों लेजर पोस्टिंग. दिया और रिया के डेबिट साइड में 2 किया, दिया और रिया के डेबिट में 2 किया और दोस्तों किया के क्रेडिट में बाय दिया एंड रिया 60,000, 60,000. I hope everyone is getting these. चलो उसके बाद profit till the date of death is to be ascertained on the basis of average profit of previous 4 years. कितना है average profit of previous 4 years? तो दोस्तों average profit of past 4 years is, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहां पे एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दोस्तों पहले प्रॉफिट मुझे ये बताओ, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एवरेज प्रॉफिट इज, निकाले थे ना अभी, 1,86,000. 1,86,000 और उसमें से क्या लेस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अब 3 लाख नहीं होगा, अब होगा 4 लाख. बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, क्योंकि कितना कैपिटल है, इस साल कितना इंटरेस्ट लगने वाला है? 4 लाख पर लगने वाला है. समझ में आया क्या सभी को? ठीक है, 4 लाख का अमाउंट है, 4 लाख पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा. तो दोस्तों कर लेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स बिफोर इंटरेस्ट 1,86,000. नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,38,000, क्योंकि 4 लाख पे 12% लेस कर देना है. अब दोस्तों 1,38,000 ये 6 महीने का प्रॉफिट है और पूरे फर्म का प्रॉफिट है. मुझे किसका चाहिए? मुझे चाहिए किया का शेयर. तो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, ये पूरे फर्म का आ गया 6 महीने के लिए, इंटू 2/5, 27,600 रुपया. एक बार चेक कर लेना दोस्तों ये पूरा एडजस्टमेंट. 27,600 इज कियाज शेयर इन प्रॉफिट. जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कियाज कैपिटल. ठीक है, लिख देंगे दोस्तों, लिख देंगे. पहले किया के कैपिटल में बाय पीएल सस्पेंस 27,600 और दोस्तों हमने बैलेंस शीट में पीएल सस्पेंस में आगे प्लस डाल के रखा था, वहां लिख देंगे 27,600. दोनों का टोटल आउटर कॉलम लिख देंगे 27,600 प्लस 4,200 comes to 31,800. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. बच्चे यहां पर अक्सर क्या मिस्टेक कर लेते हैं, यहां पे माइनस कर लेते हैं 3 लाख पे 12%. नो, इस साल जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो 3 लाख पर नहीं लगेगा, वो 4 लाख पर लगेगा, बिकॉज एक्चुअल कैपिटल इज 4 लाख. चलो नेक्स्ट.
अप टू द डेट ऑफ पार्टनर शी इज टू बी क्रेडिटेड विद हर शेयर ऑफ प्रॉफिट, दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी दे दिया 6 महीने का ही केवल। नेक्स्ट 2 लाख वॉज रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट JLP, हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज अप्रिशिएटेड बाय 20%, हो गया। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, हो गया। इन्वेंट्री इज टू बी रिवैल्यूड एट 80,000, हो गया। बैड डेट्स अमाउंटेड टू रुपीज 1760, हो गया। अमाउंट पेबल टू किया वॉज टू बी पेड इन कैश, कर देंगे। So guys, entire question is completed. Let's close revaluation account. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड बढ़ा है दोस्तों 33,000, डेबिट साइड में भी लिख दूंगा 33,000। सो 33,000 माइनस 7,500 माइनस 8,740 माइनस 1,760, कितना बचा 15,000। क्या रेशियो है 2:1:2, तो लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू 15,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, दिया 6,000, रिया 3,000 और किया 6,000, आउटर कॉलम 15,000 लिख देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेकंड इफेक्ट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिया 6,000, रिया 3,000, किया 6,000। ना दोस्तों कौन है डिसीज्ड पार्टनर किया, किया का अकाउंट क्लोज करेंगे और उसको पे कर देंगे। किया के क्रेडिट साइड बढ़ा है 70,000 प्लस 56,000 प्लस 56,000 प्लस 4,200 प्लस 60,000 प्लस 27,600 प्लस 6,000, 2,79,800। इधर भी लिख दूंगा 2,79,800, ठीक है। यहां पे कर देंगे दोस्तों, यहां पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 2,79,800, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 2,79,800 लिख देंगे गाइस। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय किया कैपिटल 2,79,800, साथ ही साथ दिया और रिया का भी क्लोज करेंगे और उसका जो भी बैलेंस आएगा बैलेंस शीट में डाल देंगे। रिया 1,80,000 प्लस 28,000 प्लस 28,000 प्लस 3,000, 2,39,000, डेबिट साइड में भी लिख दूंगा 2,39,000। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा दोस्तों, टू बैलेंस कैरी डाउन माइनस 20,000, 2,19,000 और दिया भी क्लोज कर देंगे। दिया कितना है 1,50,000 प्लस 56,000 प्लस 56,000 प्लस 6,000, टोटल कम्स टू 2,68,000। डेबिट साइड में भी लिख दूंगा 2,68,000 माइनस 40,000, 2,28,000, 2,28,000। क्या करेंगे बैलेंस शीट में डाल देंगे दोस्तों, लिख देंगे कैपिटल अकाउंट दिया 2,28,000, रिया 2,19,000, आउटर कॉलम 4,47,000। ना लास्ट पार्ट बैंक अकाउंट क्लोज कर देंगे, उसका जो भी बैलेंस है बैलेंस शीट में डाल देंगे। तो बैंक अकाउंट 1,14,510 प्लस 2 लाख, डेबिट साइड का टोटल 3,14,510, क्रेडिट साइड में भी लिख दूंगा 3,14,510 एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना बैलेंस बचेगा 34,710, 34,710 लिख देंगे। बैंक बैलेंस 34,710। नाउ बैलेंस शीट शुड टैली, बैलेंस शीट क्लोज कर लेंगे। देखो दोस्तों वो टैली हो रहा है या नहीं। 4,47,000 प्लस 60,000 5,07,000 और असेट साइड 1,98,000 प्लस 67,500 प्लस 80,000 प्लस 94,990 प्लस 31,800 प्लस 34,710। Yes, balance sheet tallies at 5,07,000. This is a good question, guys. Mark this question as important. Mark this question as important.
नाउ ओनली 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग, जो हम वेडनेसडे और थर्सडे के दिन कंप्लीट कर लेंगे. वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे. ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आज के लिए इतना ही. सी यू एट 10 फॉर मिडनाइट रिवीजन सीरीज, जहां खत्म करेंगे आज एनपीओ. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय. बाय बाय.